आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अनीस फातिमा पेश है खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ताइकोथॉन 2021 के शुरका से बातचीत की। इस मौके पर ज़िले मेडचल के कंडलाकोया में CMR इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा की जानिब से तैयार किए गए वीडियो गेम से मुताल्लिक़ तलबा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तफसीलात बताई है। ताइकोथॉन 2021 को मुश्तरका तौर पर वजारत तालीम, ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत, माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे की कारोबारी वजारत, महकमे बराए सनत व दाखिली तिजारत, टेक्सटाइल, महकमे इत्तलात व नशरियात और ऑल इंडिया काउंसिल बराए टेक्निकल ने मुश्तरका तौर पर लॉन्च किया है। Here. Yeah. Yes, see. Namaste. We are from Delhi Public School, Miapur. This is Yash, Sneha, and I am Devika. And we are at CMR College, Hyderabad, Telangana. It is my pleasure to introduce you to our board game, Krida, famous battle of Kurukshetra in Mahabharata. It was an excellent military multi-tile spiral formation. This innovative board game found its roots at our school during the multidisciplinary CBSE Art Integrated Learning Project under the aegis of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's Ek Bharat Shresth Bharat initiative, where our state of study was Haryana last year. Thanks to the initiative, Toykathon 2021 for providing us the opportunity to take it to the next level. We proudly name this our Atmanirbhar initiative, Krida, a Make in India board game that combines the concepts of modern math and Vedic math for various age groups. Kshetra in Mahabharata. It was an excellent military spiral formation. Keeping this in mind, we have made our board game, as we wanted our board game to involve the 21st century critical thinking skills such as problem solving, analytical skills, etc. And hence we have incorporated that in the board game. Okay. How do you feel you spoke to PM sir? Once again. Yes. We feel really nice after speaking. रियासती वुज़रा वी श्रीनिवास गौड़, एराबेली दयाकर राव और सत्यवती राठौर ने दिल्ली के दौरे के एक हिस्से के तौर पर शास्त्री भवन में यूनियन कल्चरल उमूर के सेक्रेटरी रघुवेंद्र सिंह से मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, सकाफ़ती और समाजी तंजीम यूनेस्को ने रामप्पा मंदिर के लिए आलमी सकाफ़ती विरसा की फहरिस्त को तस्लीम करने के लिए तजावीज़ पेश की हैं, जो मुलुगू ज़िले में काकातिया शहंशाहों के दौर में तामीर किया गया था। इस मौके पर वुज़रा ने मरकज़ी वज़ारत सकाफ़त से अपील की है कि वह रामप्पा मंदिर के लिए यूनेस्को के विरसा वाले मकामात की शिनाख्त के लिए काम करें। मरकज़ी सकाफ़ती उमूर के सेक्रेटरी रघुवेंद्र सिंह ने वुज़रा की दरख्वास्त पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आलमी सकाफ़ती विरसा साइट्स को तस्लीम करने के लिए आइंदा माह पेरिस में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की जाने वाली कॉन्फ्रेंस में रामप्पा मंदिर की शिनाख्त के लिए कोशिश की जाएगी। అదే దాంతో పాటుగా గోల్కొండలో సౌండ్ అండ్ లైట్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది. అది చాలా చివరిగా ఉంది. సెంటర్ ప్లేస్లో లొకేషన్ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేసి దాన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసినట్లయితే చాలామంది టూరిస్టులు మరి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కూడా. ఆ గోల్కొండ హిస్టరీ దగ్గర కూడా ఎక్కువ చేయాలని చెప్పి కూడా ఇబ్బంది. ఒక ఆడిటోరియం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఆడిటోరియం కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. చిన్న రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మాకు కావాల్సినటువంటి ఆశించినంత మాకు రావట్లేదు. మరి రాష్ట్రానికి నష్టం జరిగిందని కొట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చుకుంది. ఆ రోజు మీరు కూడా మీకు నిజంగా ఇన్ని సంవత్సరాలు అన్యాయం జరిగింది అన్నారు. మరి అన్యాయం జరిగిన రాష్ట్రానికి ఇవాళ ఒక జాతీయ ప్రాజెక్టు మాకు రాలేదు. మరి అన్యాయం జరిగిన వాళ్ళకి ఎక్కువ రావాలి, కానీ ఒక జాతీయ ప్రాజెక్టు రాలేదు. కనీసం ఎవరి ఇయర్ ఇచ్చేటువంటి ప్రాజెక్టులలో కూడా మాకు సరైనటువంటి మాట ఇవ్వలేదు. అత్యధికంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు పన్ను కట్టేది కూడా ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చేది కూడా మా సెక్రటరీ గారితో కలిసి మా ఎంపీ గారు అందరం కలిసి ఈరోజు దానికి సంబంధించిన సమాచారం మొత్తం కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది.
ఖచ్చితంగా ప్యారిస్లో నెక్స్ట్ మంత్ జరగబోయే वजीर खजाना हरीश राव ने आज जिले सिद्दीपेट चिनाकोडोर मंडल के चौडाराम गांव में 3.53 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले पुल के तामीराती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। जेडपी के चेयरमैन वी रोजा राधा कृष्ण शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि चौडाराम गांव में डबल लेन पुल की तामीर बाइस मसरत है। वजीर ने कहा कि इस गांव को मजीद मराहिल में तरक्की दी जाएगी। इस मानसून में रईतु बंधु के तहत 60,57,197 किसानों को बैंक खातों में 7,178 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसान को बगैर कहीं भी सरमायाकारी के इमदाद देने का सहरा टीआरएस हुकूमत को जाता है। कोरोना की मुश्किल घड़ी के बावजूद सीएम केसीआर ने 24 घंटे मेयारी बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया, जिसके लिए हुकूमत 1,000 करोड़ रुपया अदा कर रही है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी म्यूनसिपालिटी के मुख्तलिफ बल्दी वार्डों का हंगामी दौरा करते हुए मुतअद्दिद तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने ओपन नालों पर सीसी रोड, ड्रेनेज लाइन, स्लैब वगैरह का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने 64 लाख रुपये की लागत से वार्ड नंबर 20 में मिशन भगीरथा पीने के पानी के टैंक का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। वजीर के हमरा जलपली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, काउंसलर लक्ष्मी नारायण के अलावा दीगर भी मौजूद थे। फोटो ले रहे हैं, देख रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। శ్రీధర్ గారు అందరూ కౌన్సిలర్స్తో పాటు మున్సిపల్ సంబంధించిన అధికారులందరూ, వాటర్ వర్క్ సంబంధించిన అధికారులందరూ కూడా అటెండ్ కావడం జరిగింది. శ్రీరామ్ కాలనీకి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి ఉంటుంది. అన్ని కమ్యూనిటీకి సంబంధించి దేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రజలు ఇక్కడ ఉంటారు. ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రజలు శ్రీరామ్ కాలనీలో ఉంటారు. మినీ ఇండియా అని హైదరాబాద్ అంటాము. హైదరాబాద్లో ఇంకా చిన్న మినీ ఇండియా లాగా మన శ్రీరామ్ కాలనీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా నమ్మకం, విశ్వాసంతో ఇక్కడికి వచ్చున్నారు. వాళ్ళందరికీ అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రోడ్స్, డ్రైన్స్, వాటర్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, హైదరాబాద్ను నమ్ముకొని చాలామంది ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు. హైదరాబాద్ నమ్ముకొని వస్తున్న వాళ్ళందరికీ మనం నమ్మకం కలిగించాలి. వాళ్ళకి కావాల్సిన आंध्र प्रदेश काबीना में चंद तब्दीलियां लाई जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी काबीना में रद्दोबदल करने के लिए संजीदगी के साथ जायजा ले रहे हैं। अब जो वुज़रा हैं उनके काम के ताल्लुक से रजादाराना तौर पर जगनमोहन रेड्डी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हासिल कर चुके हैं। 2019 में शानदार कामयाबी के बाद जगन ने कहा था कि 2.5 साल के बाद काबीना की 9 तश्कील अमल में आएगी। इब्तिदा से जगन का साथ देने वाली रुकन असम्बली रोजा को पहले मरहले में काबीना में शामिल नहीं किया गया था। अब दूसरे मरहले में शामिल करने जगन मोहन रेड्डी संजीदा हैं। काबीना में शामिल ना करने पर रोजा एक अरसे से नाराज हैं। वो दूसरे मरहले की काबीना तश्कील का इंतजार कर रही हैं। रियासती हुकूमत तालीमी इदारों को 21 जुलाई से कुशादगी का ऐलान किया है, लेकिन टीचर्स को कोरोना पर शऊर बेदारी का फुक़दान है। तालीमी इदारों की कुशादगी से कबल टीचर्स को शऊर बेदारी से वाकिफ करवाना ज़रूरी होता है। मरकज़ी हुकूमत के तालीमी इदारों की जारी करदा कोरोना रहनुमायाना खतूत अहमियत रखते हैं, लेकिन रियासत के 28,000 स्कूल्स के 1,30,000 टीचर्स में किसी किस्म का कोरोना पर शऊर नहीं है। टीचर्स को बगैर शऊर बेदारी के तालीमी इदारों की कुशादगी ख़तरनाक साबित हो सकती है। रियासत में 80% स्कूलों में पानी दस्तियाब नहीं है। इसके अलावा टॉयलेट नहीं है। बाज़ स्कूल्स में टॉयलेट रहने के बावजूद सफाई का नज़्म नहीं है। हैदराबाद के हुदूद में 679 सरकारी स्कूल्स में 99.35 तलबा 679,000 टीचर्स हैं। स्कूल्स में सैनिटाइजेशन का नज़्म भी नहीं है। हुकूमत के फैसले से औलिया तलबा भी परेशान हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाने वाली रायलसीमा एतिपोतला स्कीम पर तेलंगाना हुकूमत के लिखे गए खत पर कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने रद्दअमल का इजहार किया है और रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन के कामों को फौरी रोकने एपी हुकूमत को एक खत
तहरीर किया है, जिसमें उन पर जोर दिया गया है कि वो लिफ्ट आबपाशी के कामों को फौरी तौर पर बंद कर दे। कृष्णा नदी के मालिकाना बोर्ड ने एक खत में कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुज़िश्ता फरवरी को अपनी हिदायत में वाज़ेह किया था कि रायलसीमा लिफ्ट आबपाशी के काम नहीं किए जाएंगे। एपी हुकूमत के आरएमबी के माहिर कमेटी दौरे का मौका नहीं दे रही है। तेलंगाना हुकूमत ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड में शिकायत दर्ज करवाई है, ताहम कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने एपी हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि रायलसीमा खुदाई का काम इस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक डीपीआर जमा कराए और मंजूर कर लिया जाए। मुल्क में पेट्रोल व डीजल की हर रोज बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ बाएं बाजू की जमातें आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के इलाकाई दफ्तर सिकंदराबाद पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। आज INN से बात करते हुए रुकन आमला CPI सैयद अजीज पाशा ने ऐलान किया कि 3 जुलाई को राजभवन का घेराव किया जाएगा। मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान के बयान की मजम्मत करते हुए CPI कायद ने कहा कि मरकजी इंतजाम कॉरपोरेटर्स अगर फलाही स्कीमात के लिए मदद करते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अवाम को लूटते रहेंगे। प्रति ग्रामानु తీసుకెళ్లి వాళ్ళు ఇనని వంటి వాళ్ళకు కూడా చెవులలో వినిపించేటువంటి కార్యక్రమం తీసుకుంటాం। ఎన్నటికున్నా ప్రజలను చైతన్యపరుస్తాం। ప్రజా ఉద్యమాల ద్వారా ఈ ప్రభుత్వం కూలదోస్తాము అనేటువంటి కదిలించిన వాళ్ళు చెప్తారు। ఓపక్ష కమ్యూనిస్ట్ కార్యక్రమాల్లో గ్రామాల్లో పనిచేస్తా ఉన్నాయనేటువంటి కానొస్తా ఉంది। आज हम जो है ना पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के सामने खाली एक अलामती तौर पे ठहरे हुए हैं, मगर असल हमारा टारगेट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी मोदी के इशारे के बगैर कुछ नहीं होता। अफसोस की बात है कि आज जबकि क्रूड ऑयल की जो इंटरनेशनल ब्रेंट प्राइस जो है $74 पर बैरल है, तो उस लिहाज से 37 रुपये में आ सकता अगर हुकूमत है ना बोझ नहीं डाली तो। रियासत की और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज इतने हो गए कि जिसकी वजह से जो ना आम आदमी का ये हो गया। अब उन्हें बोलता हमारा पेट्रोलियम मिनिस्टर प्रधान साहब, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ा कितना 60 से 74 हुआ। जब जो है ना मोदी आने के 2 साल के अंदर यही क्रूड प्राइसेस जो है ना $37 था। क्या आपने कुछ राहत दी? कम हुआ तो नहीं करते, बढ़ा दे तो चीफ वगैरह करते। इन्होंने और क्या बोलता है नहीं। दूसरा ये है कहते 3,000 करोड़ 31,000 करोड़ जो फ्री वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट खर्च करे, कहाँ से लेंगी? वो तो पब्लिक सेक्टर वाले तुमको 36,000 करोड़ दिए, जिस पब्लिक सेक्टर को नाश करना चाह रहे हैं। कई को के आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को कैसे तो भी तुम दाम को कम नहीं करे तो बर्बाद हो जाएगा। तुम देखो एक मर्तबा अभी पेट्रोल का डीजल का 100 से ज्यादा हो गया, सिलेंडर का और 900 से ज्यादा हो गया। इसलिए आप डिमांड करते हैं तुम ये कम करो, तुम्हारा टैक्सेस निकालो, इसको जीएसटी में लाओ। जीएसटी में लाए तो अलग रहता, मगर ये जो गरीब लोगों को लिए है ये पेट्रोल डीजल सिलेंडर जैसो गरीब लोग यूज करने का है, इसको जैसे तुम ऐसे ही करे तो ठीक नहीं चलेगा। ये कम करना पड़ेगा। तुम नहीं कम करे तो तुम्हारे को आने वाले दिनों में और आंदोलन ज्यादा बढ़ेगा और ये स्टेशन के लिहाज से तुम्हारे को नुकसान हो जाएगा। बराबर तुम्हारे को ये लोग ये आंदोलन से तुम्हारे को। वैएस शर्मिला की तेलंगाना की सियासत में आमद से भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट का शिकार होकर वैएस शर्मिला के बारे में गलत अफवाहों के जरिए अवाम में गलत फहमियां पैदा कर रही है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कायदीन इंदिरा शोभा, वी गोपाल, सैयद मुजतबा अहमद और भूमि रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो KTR से शर्मिला के मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर फैलाते हुए वैएस शर्मिला के किरदार को दागदार बनाने की साजिश कर रहे हैं। इंदिरा शोभा ने ऐलान किया कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी कानूनी कार्रवाई करते हुए बीजेपी की साजिशों का पर्दाफाश करेगी। బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి గ్రూపులు కాబట్టి మేము ముందు ఉంచుతున్నాం. ఇంకా ఇల్లందు బండి సంజయ్ అన్న, అరవింద్ అన్న యువసేన,
సైన్యం. ఇది కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన हो गया, सबको प्रॉब्लम हो गया. ये सब हटाने के लिए पब्लिक के साथ काम करने के लिए वाईएस राजशेखर रेड्डी का बेटी आ रहे इधर. उन आने के बाद तेलंगाना में किसी को चांस नहीं रहा था, वो अपोजिशन का आगे आने के लिए नहीं रहेगा बोल के आजकल ये अपोजिशन पार्टीज बीजेपी और पार्टीज ऐसा फेक न्यूज़ डाल के शर्मिला मैडम को बर्बाद करने के लिए सोच रहे. आप ऐसा सोचते रहते, हमारा पार्टी जुलाई 8 तारीख अनाउंस होने के बाद तेलंगाना स्टेट पूरा फिर के ये पब्लिक का मन में जो है वो मन के साथ काम करने के लिए 2004 से 2009 तक वाईएस राजशेखर का कल जो सोशल मीडिया में बीजेपी वाले जो डाले हैं वो सब गलत है. वो ये बीजेपी वालों को है ना, या सेंट्रल में भी है ना, उनकी दुम दबा के भागने वाले हैं. और स्टेट में तो उन्होंने आने वाले ही नहीं है उन्होंने, लेकिन उन लोग है ना स्टेट में आना बोल के ऐसे बातें कर रहे हैं उन्होंने. ये गलत है. हमारी पार्टी को किसी से मिल के काम करने की ज़रूरत नहीं है. हम अकेले है ना आगे निकलेंगे और हम है ना गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे. ये बीजेपी के चाल जो कर रहे हैं, सेंट्रल में भी जो कर रहे हैं वो लोग सेंट्रल में फेल हो गए, और है ना यहाँ तेलंगाना में जो यहाँ का केसीआर जो कर रहा उसको है ना उन्होंने कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन हमारी पार्टी के पीछे पड़े लोगों को क्या है यहाँ पे बेस नहीं मिल रहा. बीजेपी एआईसीसी के सेक्रेटरी संपत कुमार और कांग्रेस कायदीन की क़यादत में आरएस के दाएं नहर के कामों को रोकने के लिए चलो राजूला बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लिया. इस मौके पर बात करते हुए संपत कुमार ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत के साथ एक सिया मुआहिदा है और माली लेन देन की वजह से ही सीएम केसीआर एपी हुकूमत की जानिब से जारी नहर के कामों पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की लापरवाही की वजह से आरडीएस काश्तकारों का मुस्तकबिल सवालिया निशान बन गया है. आंध्र प्रदेश हुकूमत 1 साल से काम कर रही है, ताहम टीआरएस हुकूमत जानबूझकर अपना मुंह बंद रखा हुआ है. संपत कुमार ने वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश जब तक नहर के कामों को नहीं रोकती है तब तक एहतजाज जारी रहेगा. राजाकोंडा सीपी महेश भगवत ने राजाकोंडा कमिश्नरेट के तहत 5 लाख रुपए की लागत से आज बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया. इसके अलावा अंबरपेट पुलिस हेडक्वार्टर में सीपी ने कैंटीन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया. कैंटीन में पुलिस एहलकारों को मेयारी अशियाए खुर्दनोश की फराहमी के लिए टेंडर्स दिए जाएंगे. राजाकोंडा कमिश्नरेट बहुत बड़ा कमिश्नरेट है. एआर अमला बगैर किसी दुश्वारी के तमाम इंतजामात को यकीनी बना रहा है. डिजास्टर मैनेजमेंट इंतजामात के लिए टाटा एरोस्पेस के इश्तराक से कश्तियां भी कायम की जा रही हैं. अंबरपेट हेडक्वार्टर में आज हमारे जो पुलिस ऑफिसर से मेन है उनके लिए कैंटीन का प्रारंभ किया गया. 5 लाख रुपए खर्चा करके एक कैंटीन यहाँ पे बनाया गया है. ये सुविधा यहाँ पे नहीं थी इससे पहले, ये पहली बार ये सुविधा यहाँ पे हमने स्टार्ट की और टेंडर सिस्टम से एक कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने यहाँ पे नियुक्त किया है. अच्छा क्वालिटी लंच डिनर और स्नैक्स हमारे जो पुलिसकर्मी है उनको अवेलेबल करने के लिए एक कोशिश हमारी रहेगी. इसके साथ साथ यहाँ पे एक वॉलीबॉल कोर्ट और महिलाओं कर्मियों के लिए शटल बैडमिंटन कोर्ट भी आज हमने यहाँ पे इनाग्रेट किया है. जो हमारे पुलिसकर्मी है आर्म रिजर्व के, इनका काम जो है बहुत महत्वपूर्ण काम है. हमारे सिक्योरिटी स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे प्रॉब्लम आते हैं उसमें इन लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है. रोड ओपनिंग हो. हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने जुमेरात और जुमे को तेलंगाना के मुतअद्दिद अजला में बारिश की पेशगोई की है. हवा की सतह का दबाव जुनूब मगरिब उत्तर प्रदेश से झारखंड से होता हुआ जुनूबी छत्तीसगढ़ तक 3.1 किलोमीटर की बुलंदी तक सतह तक 5.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है. रियासत में मगरिब और शुमाल मगरिब से हवाएं चल रही हैं. नतीजे के तौर पर आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निजामाबाद, मंचिर्याला, जयशंकर, भूपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुडम, खम्माम, नलगोंडा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जताया है. महकमे मौसमियात का कहना है कि सूर्यापेट जिले में 1 या 2 मुकामात पर गरज चमक के साथ
हल्की से हल्की बारिश होगी। शहर हैदराबाद में रातों को गैर जरूरी घूमने और आवारागर्दी करने वाले नौजवानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। साउथ जोन पुलिस के ऑपरेशन चबूतरा मिशन के हिस्से के तौर पर काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में बाज़ मुकामात पर डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती की निगरानी में ये मिशन बशारत नगर और बिलाल नगर में अंजाम दिया गया। इस मिशन के तहत पकड़े गए तकरीबन 35 नौजवानों को हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की गई और बाद अज़ां उनको घर जाने की इजाज़त दी गई है। हैदराबाद के इलाके हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक मकान में सरक़े की वारदात पेश आई है। इस माह की 28 तारीख को शरीफ नामी शख्स के मकान में शादी की तकरीब होनी है। इस दौरान शादी के लिए रखे हुए 3 तोले के तिलाई जेवरात के अलावा 1,10,000 रुपये का सरक़ा कर लिया गया है। इस बात की शिकायत पर हुमायूं नगर पुलिस ने मकान की तलाशी ली और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। एनएन पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।